Welcome back, students. Today is the session number 1 from the chapter of electric potential, and today we will be discussing in short about the electric potential and the potential energy which is associated with any charge when it is placed in an electric field of some another charge. Now, अभी मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है which is basically the Cartesian frame of reference, and I have placed a charge Q. ठीक है, this is a positive charge, and I place this charge Q at the intersection of these three axes, and the Cartesian frame of reference is basically it is a frame of reference which is used to define the position of any object. So यहाँ पर मैंने इसमें जो ये चार्ज Q है इसको मैंने ओरिजिन पे प्लेस किया है. Now ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसकी वजह से आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं दे आर डायरेक्टेड आउटवर्ड फ्रॉम द चार्ज. मतलब ये चार्ज से बाहर की तरफ इनकी जो दिशा होगी वो बाहर की तरफ होती है, इधर इस तरफ, जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है. ठीक है, अब लेट अस से देयर इज सम आई एम ब्रिंगिंग वन very small charge, or you can say a unit positive charge from a very far place, let's say from infinity, जो कि किताबों में infinity का word use करते हैं. So I am bringing that charge from a very far place or infinity, and I am trying to place it at a point P in the electric field of this charge, that is charge Q, this capital Q. तो क्या होगा जब मैं इस चार्ज को यहाँ पर लाने की कोशिश करूँगा, बिकॉज दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, देन इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स होगा, बिकॉज दोनों चार्ज पॉजिटिव है. तो ये रिपल्सिव फोर्स अगर है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी विच शुड बी सफिशिएंट एनफ टू ओवरकम दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है, तो फोर्स जो एक्सटर्नल है हम लगाएंगे जो इट शुड बी इनफैक्ट ग्रेटर देन force, that is E, and force E is the electrostatic force between these two charges. It is a repulsive force because both are positive in nature. So मेरा ये जो force external है, it has to overcome the electrostatic repulsive force. Overcome का मतलब ये है कि इसकी value इससे this force external की value इस Fe से थोड़ी सी ज़्यादा होगी. थोड़ी सी कहने का मतलब है कि मान लीजिए Fe की value है मान लीजिए 10 न्यूटन, तो F external कितना होना चाहिए? ये 10 से ज़्यादा का मतलब है कि अगर आप 10 के बाद में खूब सारे जीरो लगा दें, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जीरो, एंड फाइनली यू आर जस्ट राइटिंग एट द एंड एज लेट्स से 1, खूब सारे जीरो लगा दिए, मिलियंस. ठीक है ना, तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा हो गई. अब बिकॉज you can say the difference in the value of this force external and Fe is very small. उसकी वजह से क्या होगा कि because this is more than this, so the charge will start moving at a very small speed, or you can say with almost zero acceleration. तो वो आएगा and then it will, वो हम जो इस electric field में ला सकते हैं. ठीक है, and it will be placed at some point in the electric field of that charge. Now in doing so we are actually we are doing some work in order to bring that charge from infinity to a point in the electric field. अच्छा, work done का क्या फॉर्मूला होता है? Work done is basically force into the displacement, जो हमने पढ़ा हुआ है. So हम यहाँ पर यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि जो force that is work done in bringing that charge from infinity, that is this charge Q, ठीक है, which I am considering it as a very small charge in comparison to this Q. So ये अगर आपका work done हो गया, work done will be equal to let us say I will be integrating this from infinity to the, let's say, to this point P, and it will be F external dx. ठीक है, दैट इज ये आपका वर्क डन हो गया. वर्क डन इज द फोर्स अप्लाइड इनटू द डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx. सो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हो गया कि
जो वो पार्टिकल है हमारा, उसकी लोकेशन जहाँ पे भी है, वहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसका कुछ एक डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो दैट डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द फोर्स एक्सटर्नल विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द वर्क डन। ये जो वर्क डन है, सो ये क्या होगा, फोर्स एक्सटर्नल है। नाउ हमको ये पता है कि फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। ये माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन अगर इधर है तो एक्सटर्नल की डायरेक्शन इधर होगी, तभी तो चार्ज आगे मूव करेगा। तो इसीलिए माइनस साइन इज इंडिकेटिंग दैट द डायरेक्शन ऑफ दीज टू फोर्सेस आर ऑपोजिट। सो ये हम यहाँ पे इसको ये लिख सकते हैं, इस वाले को आई कैन राइट इट डाउन हियर, दैट इज W विल बी इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to P F external dx can also be written as minus Fe to P Fe dot dx, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है। सो ये हो गया, सो द वर्क डन ये हो गया। नाउ दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज टू दिस पॉइंट P in the electric field of this Q. Now work done अगर है तो now यहाँ पे आप देखेंगे मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा इधर, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और दिस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय इज इक्वल टू V upon D, where V is the potential of the charge at this point, at any point in the electric field, divided by D. D क्या है? D is the distance of that point from the charge which is generating the electric field, ठीक है। तो this is E is equal to V upon D, मतलब अगर E की वैल्यू बढ़ती है तो V की वैल्यू पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाएगी, और अगर D की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, तो दैट इज E की वैल्यू अगर बढ़ी तो V की वैल्यू बढ़ेगी, और अगर आपका ये अगर ये E की वैल्यू कम होती है तो V की वैल्यू भी कम हो जाती है। अब E की वैल्यू हम बात करते हैं, E क्या है, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। इस केस में Q कैपिटल हो गया, ठीक है। अब E की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है, ये जो पॉइंट है it is directly proportional to the magnitude of the charge and inversely proportional to the square of the distance separating them. इस पॉइंट और इस कैपिटल Q के बीच का डिस्टेंस अगर R है तो ये E is inversely proportional to the square of the distance between them. That is, अगर डिस्टेंस मेरा बढ़ेगा तो E की वैल्यू कम हो जाएगी, और डिस्टेंस, और अगर Q की वैल्यू हमारी क्या कहते हैं, ये हम इसकी वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो E की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। सो we can say that if the value of Q is increased, then E will increase, and if E increase, then the potential of that point or the potential at that point will increase. और अगर मैं distance of that point is reduced, ठीक है, if the distance of that point is reduced, then the value of E will also increase. और अगर V की वैल्यू इंक्रीज होगी तो V भी आपका V की वैल्यू दैट इज द पोटेंशियल जो है उस पॉइंट पे भी बढ़ जाएगा। सो इन अदर वर्ड वी कैन से दैट द पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ V ऑफ E, एंड द वैल्यू ऑफ E इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ Q एंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द लोकेशन ऑफ दैट चार्ज, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज टू आर रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ अब हम आते हैं इसके ऊपर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन शॉर्ट में लिखा है कि इट गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी अ चार्ज विल हैव व्हेन इट इज ब्रॉट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अनदर चार्ज, ठीक है। और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी, इट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और यू कैन विल हैव एन आइडिया ऑफ व्हाट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी which that charge will possess when it is brought in the electrical field of this charge Q, ठीक है। अब ये है इसकी डेफिनेशन है कि it is a measure potential energy per unit charge है, it is equal to V is equal to W upon Q, that is the work done in bringing that charge from infinity to that point Q in the electric field
divided by the magnitude of the charge. और in other words हम ये भी कह सकते हैं if the potential at a point is known then the potential energy associated with that charge is equal to Q into V. क्यों? ये जो work done हम कर रहे हैं, the work done which is done is stored in the form of potential energy. मतलब जब भी हम किसी एक चार्ज को एक बहुत ही इंफिनिटी से लेके इस पॉइंट पे ला रहे हैं, then we are doing some work and that work is stored in the charge in the form of potential energy. So potential energy, so work done will be equal to the potential energy and this is equal to QV. ठीक है, तो ये एक आपका ये रिलेशन आ गया. ठीक है, ये एक रिलेशन आ गया. दूसरा रिलेशन आपका ये आ गया. तीसरा रिलेशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी जो है, अब ये मान लीजिए चार्ज यहाँ पे Q आ गया. सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ चार्ज will be given by this formula, that is 1 by 4 pi epsilon naught dot q divided by this is equal to r. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी अगर क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught dot q divided by, and this is the potential energy of this system of two charges, that is q and q. तो ये आपका हो गया. एंड पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? 1 by 4 pi epsilon naught dot q by r square. ये E क्या है? E is the intensity of electric field due to this charge, this capital Q. एंड पोटेंशियल मैंने आपको बता दिया. पोटेंशियल क्या है? पोटेंशियल गिव्स यू एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विच अ चार्ज वुड हैव when it is brought from a very very far place, say infinity, to a particular point in the electric field of some other charge. ठीक है, तो ये हो गया आपका ये दैट पोटेंशियल की डेफिनेशन होगी. पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ? जब यहाँ हमने प्लेस कर दिया इसको. ठीक है, when a charge is placed at a certain point, ठीक है, in the electric field of another charge, ये आपका Q है which is now इस केस में हम बात करें, ये चार्ज क्यों है, इट इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस चार्ज क्यू बाय अ डिस्टेंस d. तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? इस केस में विल बी इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught q divided by t, and this potential energy is the potential energy of the system of two charges. ठीक है. सेकेंड इंपॉर्टेंट है कि द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पर्टिकुलर पॉइंट इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू q into v. ठीक है. अच्छा, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी था कि हम किसी भी चार्ज को, यहाँ पे जैसे दो चार्ज मैंने पॉजिटिव चार्ज लिए हैं, ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी स्मॉल, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू दिस चार्ज. तो अगर हम इस चार्ज को एक बहुत ही दूर, दैट इज वी आर ब्रिंगिंग इट फ्रॉम अ वेरी वेरी फार प्लेस से इन्फिनिटी से लेके इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आ रहे हैं, तो ये तभी पॉसिबल है जब इसका जो इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दैट इज जो यहाँ इनके बीच में एक रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसको हम ओवरकम करें. सो व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज जस्ट सफिशिएंट टू ओवरकम दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन द चार्ज विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दिस चार्ज एट अ वेरी वेरी स्मॉल स्पीड, or we can say with almost zero acceleration. So we can say that force, so in this case for the calculation point of view, what we write is that force external should be equal to this force of this electrostatic force, और यहाँ माइनस इसलिए लगा हुआ है बिकॉज इन दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है. सो वी कैन ऑल्सो राइट दैट वर्क डन इज इक्वल टू, अगर इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो इन्फिनिटी से लेके P, दिस इज द पॉइंट P, वी आर जस्ट इंटीग्रेटिंग इट, फोर्स एक्सटर्नल डॉट dx, वी कैन राइट इट dx भी लिख सकते हो, या किताबों में आपको dr भी मिलेगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो. तो बेसिकली दिस इज डिनोटिंग द डिस्प्लेसमेंट. So force external dot dr which is equal to minus F is लगा दिया because this is equal to the this electrostatic force. So ये हम इसको इंडिकेट करेंगे from infinity to P, and that is Fe dot dr, and we will get the work done in bringing this charge from infinity to this point. ठीक है, तो this is also an important formula, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये आपको जानना से पता होना चाहिए. And this is also important that the potential is a measure of potential energy per unit charge, so that is equal to W upon Q, where W is the work done and divided by the magnitude of the charge.
ठीक है. सो ये है एंड yes, so this is all about the electric potential and the potential energy, and in the next session we will be doing a couple of questions which are normally asked in the board examination. Once we are once we have understood the means how once we have जब हम एक बार इन क्वेश्चंस को जब जो बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं वो थोड़ी इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो वंस वी हैव डन दोस क्वेश्चन देन वी विल बी इन अ पोजीशन टू सॉल्व सम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स व्हिच आर नॉर्मली आस्क्ड इन द जेईई एग्जामिनेशन और नीट एग्जामिनेशन. तो पहले हम अगले सेशन में इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, and thereafter in the maybe in the session number 3 we would be taking some difficult questions. So thank you very much for joining this session. Have a nice day and bye.